Hey guys, welcome back to Design by Misha. I am at Golden City of India, also known for its heritage, culture, and definitely desert. You guessed it right, I am in Jaisalmer, one of Rajasthan's biggest tourist destination. So we are at Gadisar Lake and this is an artificial lake. It was the only source of water in Jaisalmer. It was constructed by the first ruler of Jaisalmer, Raja Rawal Jaisal. Later, the lake was rebuilt by Garsi Singh and after that it was renamed as Gadisar Lake. Along the ghats of the lake, you will find temples, chhatris and shrines making it look more beautiful. Near the lake, there is a museum by Mr. N.K. Sharma and we end up watching the puppet show, which was very well done and the authentic folk music was mesmerizing. Patwaon ki Haveli. It is best to walk to the place since the Haveli complex is situated in a narrow lane. It was the first Haveli erected in Jaisalmer and it is not a single Haveli but a cluster of 5 small Havelis for each of his 5 sons. These were completed in the span of 50 years. The Havelis are also known as the Mansion of Brocade Merchants. This name has been given probably because the family dealt in threads of gold and silver used in embroidering dresses. एक साहब हस्बैंड के पास एक वाइफ के पास दोनों में से एक का झगड़ा हो गया तो लोग नहीं खुले. Vyas Chhatri is a photographer's delight and the perfect place to pose for your best shots, especially in the evening. A visit here will give you an enduring peace and calmness, especially during sunset. So I am at Vyas Chhatri right now and the most exciting thing is I thought it's a sunset point, but it's actually a cremation ground. So I'm running. Bada Bagh. It might surprise you with its greenery in the desert. ये वाले जो आर्किटेक्ट जो कारीगर थे ना वो अलग थे. हिंदू वर्कर से बनाए मंदिर की शेप दे दिया, मुस्लिम वर्कर से बनाए मस्जिद की शेप दे दी. अभी हिंदू वर्कर से बनाए उन्होंने यूज किया इंटरलॉक सिस्टम. उसमें कहीं भी मैम चूना सीमेंट कुछ भी यूज नहीं, मतलब पत्थर का अंदर पत्थर लॉक करके फंसा है. और मस्जिद आपको पता है ऊपर से प्रॉपर गोल होता है मैम, उसमें इंटरलॉक सिस्टम यूज नहीं कर सकते था. उन्होंने यूज किया कि चूना लोहे की टी. तो लंबे टाइम की स्टोन होने की वजह से छतरियां गिर के क्रैक हो गई. वहाँ पे एक भी छतरी गिरी क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम से. अब आप देखो अपने इंडिया में क्या 2 प्रथाएं थी, सती और जौहर. सती का मीनिंग होता है कि पति नॉर्मल डेथ से मारे तो उसके साथ जिंदा जलना सती प्रथा हो गया. जौहर में तो जैसे राजा कहीं युद्ध करने जाता और युद्ध से राजा अगर हार जाए तो वहां से एक सोल्जर पैलेस के जाके ही इंफॉर्मेशन देना है कि राजा हार चुका है, मर चुका है. तब पैलेस के जितने भी औरतें ना चरानियां दासियां एक आग लगा सो सारी कुछ जला. जिसमें सबसे बड़ा जौहर होता है चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती साहब. 16,000 औरतों जौहर किया था, जिस जौहर पे भी मूवी आई थी पद्मावत. I would suggest you take your cameras along as the place is extremely beautiful and will give you many photo opportunities. The landscape garden besides Bada Bagh, it's soothing to eyes and provides a green touch to the entire region. There are many mango trees around too.
complete without visiting some desert. So if you are also planning to come to Jaisalmer, do visit this place. And I must tell you, this experience you can't get it anywhere else. It is around 50 km from Jaisalmer city. Love the thrill and the open air. I did a camel ride in the desert for the very first time, and it's worth it. The endless view of the desert, camel rides, and the sand in your feet will fill your heart with happiness and peace. Jaisalmer Fort is the most popular landmark of Jaisalmer city. Unlike other forts of Rajasthan, Jaisalmer Fort houses museums, shops, restaurants, residential accommodation, hotels, etc. The Jaisalmer Fort is one of the few living monuments in the world and home to a fourth of the city population. The view of the sunset from this fort is a treat to the eyes for all the travelers and especially photographers. ऊपर मकान नीचे दुकान एक तरीके का बिजनेस है। Jaisalmer Fort is popularly known as the Sonar Killa because it is made of yellow sandstone. जब कोई फेस्टिवल कोई कार्यक्रम होता है यहाँ का राजा वो वहाँ पर बैठते हैं। मार्बल है ना, पिंजरा पैक किया हुआ सिंहासन वहाँ पर। और ये सामने टेम्पल है चामुंडा का। पुराने समय में बफेलो की बलि देते थे, यानी पाड़ा बांटते थे। अभी पाड़ पूजा होता है। तो ये किंग पैलेस है, राजा का महल, और ये रानी का महल। और ये नीचे छोटे छोटे पेड़ देख रहे हो ना, तो रानी अपन को देख सकती थी, अपर रानियों को। पुराने समय में एक राजा की 10 रानियां 15 रानियां होती। अभी तो एक ही, उसको भी संभालना पड़ता है। ये जैसलमेर स्टोन का सैंड स्टोन, ये पूरा इंटरलॉक में बना हुआ है। ऐसे पत्थर से पत्थर जुड़ा हुआ है, एकदम जॉइंट सिस्टम है। हमारा जैसलमेर में पत्थर की डिजाइन है। पुराने समय में लोग छीने और हथौड़ी से काम करते थे। जितना अपन इसको खोदेंगे ना उतना बाहर आएगा पत्थर। पुराने समय में ऐसा काम होता था, नशा करके। अभी तो मशीनें आ गई। ये देखो ऊपर आप देख रहे हो, अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं, एकदम बारीक काम है। की शादी होती है तो गणेश जी की पेंटिंग करते हैं, शुभ रहता है। जैसे ये नाम का और ये तारीख और दूसरे की नेक और दूसरी पेंटिंग शुभ रहता है। हर घर के सामने मिलेगी। ये किसका महल? ये महाराज गणेश जी का। अभी के जो राजा है वो उसके बाहर रहते हैं, पहले इसके अंदर रहते नहीं रात को। यहाँ राजा है उनको बोलते महाराज। जोधपुर में महाराजा, उदयपुर में महाराणा, सबके जो आदम। राजा था, उनकी हाइट थी 7.5 फुट हाइट, उनका वजन था 250 किलो। ये नाइट ड्रेस है अमिताभ बच्चन के साथ में, ये भी आपको अंदर बताएंगे। महाराणा विजय सिंह का ससुराल था नेपाल में। ये नेपाल के हथियार है, इसको बोलते हैं कुकरी। और ये पुराने तेल से बना है। डेजर्ट में आप जाओगे ना, पेड़ और सामने की सब्जी खाना, उस पेड़ का ये छत बना हुआ है। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा। सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल, दशहरा चौक। और यहाँ से गए थे गलियों मौके, बड़ी तोप देखी थी। यहाँ वापिस रिटर्न होके यहाँ पर दशहरा चौक, इधर यहाँ से होके ये बाकी हवेली, यहाँ जैन टेम्पल, वापस रिटर्न यहाँ होके इधर होके, और यहाँ जो ये टेम्पल देखा था हिंदू टेम्पल लक्ष्मी नाथ जी का, वापस इधर होके यहाँ होके दशहरा चौक, राजा के महल के अंदर यहाँ घुसी, इधर होके यहाँ होके इधर ऊपर अभी गए थे टॉप पे फोटो खींचा, अभी यहाँ है। वापिस रिटर्न यहाँ से होके इधर होके वापस दशहरा चौक। आने जाने का रास्ता एक ही है।
If you are also a traveler like me, who is always keen on visiting location with a rich heritage, religious significance and delicious food, then you must explore Jaisalmer.